ओए जो दिस है अंबर तारे, किन ओए चीते चीतन हारे। रोशनियां दी पालकी दा बूहा खोल रहे, चमक चमक के तारे नानक नानक बोल रहे। चमक चमक के तारे नानक नानक बोल रहे। ए चानण दे बन जा रे जो वेखण दे विच इक लगदे, मैनू चिट्टे चिट्टे तारे गुरु नानक जी दे सिख लगदे। श्री वाहिगुरु साहिब जीओ, तेरे कवन कवन गुण कह कह गावां, तू साहिब नीत नहना, तुम्हारी महिमा वर्ण न सका। तू ठाकुर ऊच भगवाना, तू सुल्तान कहा हो मिया, तेरी कवन बड़ाई। जो तू देहे सो कहाँ स्वामी, मैं मूर्ख कहन ना जाई। सो कहो डाल गुर सेविया, एहनस सहज सुभाए। दर्शन परस है गुरु का, जन्म मरण दुख जाए। दर्शन परस है गुरु का, जन्म मरण दुख जाए। जुग जुग अटाल चवर शतर तख दे मालिक, हाजरा हजूर सर्व कला भरपूर सतगुरु। धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी आदि पावन गोद विच जुड़ बैठे गुरु प्यारी गुरु सवारी सत संगत जीओ। सतगुरु दी महान अपार रहमत बख्शो सदका, आप सर्वत संतां अमृत वेले की संभाल करते हुए और सावन महीने की संगरांद नूं मुख रखदे होया हाजरियां भर के पावन गुरबाणी दा कीर्तन श्रवण कर रहे थे। सो आओ बड़े बड़े सत्कार दे नाल जो सानू सतगुरु धन गुरु अर्जन देव जी महाराज सच्चे पातशाह दी माझ राग दे विच 12 मन दी बाणी ते सरलेख हेठ जो संगरांद के दिहाड़े में मुख रखते संगतां गुरु घर विखे हाजरियां भरदियां ने। तिन्हां दे प्रथाएं सतगुरु जियां ने महीनावारी इन्हां महीनियां नूं संबोधन करते हुए संगतां नूं उपदेश करते हैं। सो जिथे पिछला महीना सुख सुखां दा बतीत होया संगतां दा, आज जो सावन का महीना प्रारंभ होने जा रहा है, सारिया संगतां बड़ी श्रद्धा भावना के नाल गुरु घर विखे हाजरियां भर रही ने, तां जो ये महीना भी सुख सुखां दे नाल बतीत हो जाए, हसदियां खिड़दियां बतीत हो जाए। सो आओ इन्हां पावन वचनां दे विचार करिए। महीने के उपदेश के नाल जुड़न तो पहला सारिया संगतां एक रस गज बन के बुलाओ, वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की
ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਉਪਰਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਕਲਯੁਗੀ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਵੇ, ਉਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰ ਲਵੇ। ਇਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨੇ ਇਸ ਜੀਵ ਦਾ ਆਉਣਾ ਸੰਭਲਿਆ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਜਿਉਂ ਹੀ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਕੂੜ ਦੇ ਪਸਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਵਿਖਿਆ ਦਾ ਧਨ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਇਸ ਘਰ ਨੇ ਨਾਲ ਜਾਣਾ ਆ, ਨਾ ਇਹਨੇ ਸਦਾ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹਦੇ ਜੰਜਾਲਾਂ 'ਚ ਇਹਦੇ ਮੋਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡਾ ਫਸਦਾ ਹੈ, ਰੱਬ ਨੂੰ ਤੇ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਯਾਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਦਾ। ਹੁਣ ਅਰਦਾਸਾਂ ਨਿਤ ਕਰਦਾ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀਆਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਦਾ, ਜੋਦੜੀਆਂ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਗੱਲ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠਣ ਬਾਰੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ, ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕੂੜ ਦੇ ਪਸਾਰੇ, ਕੂੜ ਦੇ ਨਾਸ਼ਵੰਤ ਪਦਾਰਥਾਂ ਤੋਂ ਬਚ ਕੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚਿੱਤ ਜੋੜਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕਾ, ਅਰਦਾਸ ਤੇ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨ ਮੰਨਣ ਦੀ ਤਿਆਗ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਆਂ ਦੇ ਜੋ ਬਚਨ ਨੇ ਅੱਜ ਸਾਵਣ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਉਹ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਆਓ ਬੜੇ ਅਦਬ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨ ਵਿਰੁੱਧ ਚਿੱਤ ਇਕਾਗਰ ਕਰੀਏ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਪਾਵਨ ਵਚਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਾ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਾਵਣ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਬਤੀਤ ਕਰੀਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸੌਣ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚੰਗਾ ਬਤੀਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤੀ ਜੋੜਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਭੌਰਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਝੂਠ ਨਾਸ਼ਵੰਤ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦਾ ਖਹਿੜਾ ਛੱਡ ਕਰਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਵਣ ਸਰਸੀ, ਇਹਨੂੰ ਸਰਸੀ ਪੜਨਾ ਹੈ। ਸਰਸੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰੀ ਹੋਈ। ਸਾਵਣ ਸਰਸੀ ਕਾਮਣੀ, ਕਾਮਣੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀਵ ਇਸਤਰੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਆਤਮਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਆ ਕਰਕੇ ਉਸ ਮਾਲਿਕ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਦੀ ਤਰਲੋ ਮੱਛੀ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ। ਉਸ ਜੀਵ ਇਸਤਰੀ ਬਾਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਵਣ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਪਿਛਲਾ ਮਹੀਨਾ ਅਸ਼ਾੜ ਦਾ ਬਤੀਤ ਹੋਇਆ, ਇੰਨੀ ਗਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੜਫ ਰਿਹਾ ਹੋਇਆ ਬਤੀਤ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾੜ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਵੀ ਬੜਾ ਹੱਸਦਿਆਂ ਖੇਡਦਿਆਂ ਬਤੀਤ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਸਾਵਣ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਪ੍ਰਾਰੰਭ ਹੋਇਆ, ਰੰਗ ਚੜਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮ ਦਾ। ਅੱਜ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀਆਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦਾ ਸਦਕਾ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਕਮਲਾਂ ਦੇ ਭੌਰੇ ਬਣੇ ਨੇ। ਸਾਵਣ ਸਰਸੀ ਕਾਮਣੀ ਚਰਨ ਕਮਲ ਸਿਓ ਪਿਆਰ। ਹੁਣ ਜਿਹਦੇ ਜੀਵ ਦਾ ਪਿਆਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਦਿਨ ਨੇ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਕਿਵੇਂ ਔਖਾ ਲੰਘ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅੱਜ ਦੇ ਪਾਵਨ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਵੀ ਇਹ ਆਏ ਨੇ, ਹਰ ਬਿਸਰਤ ਸਦਾ ਖੁਆਰੀ। ਹੁਣ ਜਿਹਨੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਭੁਲਾਇਆ, ਜਿਹਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਚਿੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵਸਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨੇ ਤੇ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਿੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕਰਮ ਕੋ ਧੋਖਾ ਕਹਾਂ ਦੇ ਆਪੇ ਜਾਂ ਕੋ ਓਟ ਤੁਹਾਰੀ।
जिन्हां ने ओट उस मालिक परमेश्वर के चरणों की रखी हुई है ते वो किवें किफल खुआर होणगे। ਉਹ ਤੇ परमात्मा का शुकराना करते हुए अगे बढ़ते ने। माड़ा समा आया ये जान के कहते हैं कि जिथे चंगा आया उत्थे माड़ा भी आना है, जिथे दिन है उत्थे रात ने भी आना है, जिथे गर्मी है उत्थे सर्दी ने भी आना है। वो इसे गल दे विच ही अपना जीवन बर्बाद नहीं करते। वो जेड़ा दुख आया उन्होंने भी हस के बतीत करके, जो चंगा समा आंदा उन्होंने भी हस के बतीत करते हैं। ते सतगुरु जी कहते ने जिन्हें चरणा कमलों का ध्यान कर लिया उस मालिक दे ते वो हमेशा ही सावन के महीने दे विच रस दे नाल भरी हुई जीव इस्त्री वो परमात्मा के चरणों के नाल जुड़ के अपना जीवन बतीत करती है। जिवें कि सौण के महीने दे विच जदों बरसातां होंदियां ने, बारिशां होंदियां ने, हर जिहड़ी बनस्पति है हरी भरी हो जाती है, उस मालिक का शुकराना करती है। इस तरह वो जीव इस्त्री जब परमात्मा के चरणों के नाल जुड़ जाती है फिर उस वाहिगुरू का शुकराना करती हुई अपना जीवन बतीत करती है। तो सतगुरु जी कहते हैं मन तन रंगा सच रंग इको नाम आधार। उन्हां दे मन नूं भी और तन नूं भी रंग चढ़िया है, दादा इको नाम आधार। सच का रंग चढ़ चुका है, एक नाम का रंग चढ़ चुका है। पता लग गया कि जिंदगी ज्यादा चिर नहीं गई, ये जिंदगी ज्यादा चिर नहीं। उन्होंने गुरु के बचन बार बार करना च गूंजते ने, विखे बन फीका त्याग दी सखिए नाम महारस पीओ। उन्होंने पता लग गया कि मेरे सतगुरु धन गुरु अर्जन देव महाराज सच्चे पातशाह जी ये सानू उच्ची आवाज दे विच होका दे रहे ने कि विखे बन फीका त्याग दी सखिए। वो जेड़ा झूठ दे पदार्थ ने, नाशवंत पदार्थों का रस है जेड़ा, उन्हां नूं त्याग के वो रस की प्राप्ति कर नाम महारस पीओ। वो जेड़ा नाम पीओ जिन्हां ने तुहाडा इस दुनिया में भी साथ देना और उस परलोक दे विच भी तुहाडा साथ देना, वो जीव इस्त्रियां हमेशा ही उस परमात्मा के चरणों के नाल जुड़ करके एक नाम दे विच अपने मन नूं भी और तन नूं भी ला छड्डियां ने। हुण जिन्हां ने इस गल नूं ना समझना ना सुनना, भावें बैठे रोजी गुरुद्वारे साहिब होवण ते गुरु रोज वाजा मार के कहे कि विखे मन फीका त्याग दी सखिए नाम महारस पीओ। उन्हां दे सिर दे उत्तों दी ये गल लग जानी, असीं ते वेखदा ही जेड़ा जहर रूपी ही रस चखना है, असीं नाम दा रस नहीं चखना। उन्हां दी जिंदगी दे विच सुख किवें आ सकदा है? वो सौण दा महीना हसदियां खेड़दियां किवें बतीत कर सकते ने? क्योंकि पापी कर्म कमाउंदे करदे हाय हाय, उन्होंने हाय हाय करदियां ही जीवन जेड़ा अपना बतीत करना है। सतगुरु जी बख्शिश करते ने जिन्हां ते कृपा हुई बख्शिश हुई को नाम दे विच रंगे गए, विखिया रंग उड़ाविया दिसन सबे शार। अज पता लग गया जदों गुरबाणी दी गूंज पई करना दे विच हिरदे दे विच जाके तीर ने उसने जाके निशाना लाया। अज पता लग गया ये जेड़े दुनिया दे रंग ने, ये जेड़ी मोह माया है, विखिया रंग उड़ाविया। ये कूड़ राजा कूड़ प्रजा कूड़ सब संसार कूड़ कूड़े नेह लगा विसरिया करतार। पता लग गया अज कि रब मैनू विसर चुका, मैं अज कूड़ दे विच मस्त हो चुका हाँ, ये दुनिया के पदार्थों दे विच मैं मस्त हो चुका। हर वेले मेरी जिंदगी दे विच धन दौलत दीयां गल्लां ने, हर वेले मेरी जिंदगी दे विच अपने परिवार दीयां गल्लां ने, हर वेले मेरी जिंदगी दे विच बिजनेस दीयां गल्लां ने, पर रब दी गल एक पल भी मेरी जिंदगी विच नहीं आ रही। पर जिदन नाम दे विच जुड़ गया, जिदन गुरु के चरणों का भौरा बन गया, उस दिन समझ आ जाएगी कि ये दुनिया के जिन्ने भी रंग तमाशे ने ये सारे ही नाशवंत ने, ये सारे ही स्वाद ही मुल ने। दिसन सबे शार, शार का मतलब सुहा,
ये सारे स्वाद की तरह ने। हर अमृत बूंद सुहावनी बिलसात पीवण हार, ओ जेड़ी अमृत हरि रूपी अमृत जेड़ी है नाम रूपी अमृत की बूंद, ओ जेड़ी पीवण दी मन तरसदा पिया है। अज गुरु की संगत विच जाण नूं दिल करदा पिया, क्यों पता लग गया, समझ आ गई है कि ये विख्या दे रंग ने जेड़े, ये जहर रूपी जेड़े रंग ने, इन्हां ने मेरी जिंदगी का नाश कर देना है, इन्हां ने मेरी सुवासियां का नाश कर देना। जिंदगी लंघदी जा रही है, समा बर्बाद होता जा रहा। अज पता लग गया कि हरि दे अमृत दी बूंद नूं चखना सी, ओनूं चख के अपनी जिंदगी का आनंद माणना सीगा। अज ओनूं भुल चुकिया सीगा, पर जदों पता लग गया इस गल दा, अज गुरु दी संगत, रब दे प्यारियां दी संगत विच मिल करके बैठण दे सुभाग हर वेले अवसर लभदा रहता है कि मैं उन्हां दे विच मिल करके ओ जेड़ी अमृत रूपी बूंद है, उन्हां दे शब्द सुन करके, गुरु दी बाणी नूं सुन के झिम झिम वरसे अमृत धारा, मन पीवे सुन शब्द विचारा। अज पता लगता पिया है कि जदों असीं शब्द दी विचार दे नाल जुड़ांगे, शब्द दी विचार नूं सुनांगे, उदों ओ जिहड़ी बूंद है साडी रसना ते आउणी है, उदों आनंद आउणा है। क्योंकि जदों गुरु दी संगत विच बैठदे हां, आण करके उत्थे जदों चित जोड़दे मालिक दे चरणां दे नाल, एक ऐसा रस उत्पन्न हुंदा है, दिल करदा है कि इत्थे बैठ करके परमात्मा दा भजन कीता जावे, सिमरन कीता जावे, बंदगी कीती जावे। पर ये उन्हां दे हिस्से आउंदी जिन्हां नूं इस गल दा पहिलों पता लग जांदा कि ये दुनिया दे जिन्ने मोह ने, ये जिन्ने रंग ने, ये सारे ही झूठ दे फंदे दे विच बचे होए ने। इन्हां नूं मैं छड्डांगा ते फिर वो अमृत रूपी जिहड़ी बूंद है, वो जिहड़ा रस है, फिर मैनूं प्राप्त होना। जे उसे फंदे दे विच फंदा होया, भावें तू गुरुद्वारे बैठा है, भावें तू गुरु दीआं लंगरां दे विच सेवावां कर लिया है, ते तैनूं वो बूंद दा रस प्राप्त नहीं होना। क्योंकि जिन्ना चिर एक गल नहीं छड्डदा, उन्ना चिर दूजी नूं धारण नहीं कर सकदा। क्योंकि जदों भी कोई दोष का जिन्ना चिर पता नहीं लगदा, उन्ना चिर उस दूसरे रोग का इलाज नहीं हो सकता। जदों दोष का पता लग जाता कि आ रोग है, ते फिर उस रोग का इलाज होता है। ते जदों दोष का ही नहीं पता, ते इलाज किस चीज का करांगे। इस करके पता लग गया जिस जीव नूं वो संगतां दे विच आण के बैठदा है, गुरु दी बाणी नूं कंनां दे नाल सुणदा है, नेत्रां नाल सतगुरू जीआं दे दर्शन करदा है, बस चित उस अकाल पुरख परमेश्वर दे चरणां दे विच जोड़ के बैठदा है कि जे मैं गुरुद्वारे आया हां, गुरु दी संगत विच आया हां, मेरा एक एक जिहड़ा पल है गुर चरणां दे विच बतीत हो जावे, मेरा एक एक जिहड़ा सुवासा है वो सफलिया हो जावे। किते ऐसा ना होवे कि वो जिहड़ा सुवास मैं घर दे विच गल्लां बातां करदियां बतीत कीते सन, ओही सुवास जिहड़े मैं गुरुद्वारे विच बैठ के बतीत कर रहा हां, ओही सुवास मैं गुरु दे लंगरां दे विच सेवावां करदियां बतीत कर रहा हां, ओही सुवास जिहड़े मैं गुरु दीआं संगतां दे जूठे बर्तन साफ करदियां बतीत कर रहा हां। जदों दोष का पता लग जाता, पता लगता कि जिहड़े ये सुवासे ते घर भी आ रहे सन, ये सुवासे ते बिजनेस करदियां भी आ रहे सन, पर ये जिहड़े सुवासे गुरु दी संगत विच बैठ के मैं बतीत करने ने, इन्हां नूं नाम दे राही मैं सफलिया करना है। अज पता लग गया। ते सतगुरु जी कहते ने वण तिन प्रभ संग मौलिया, समरथ पुरख अपार। अज उस परमात्मा की पहचान हो चुकी है, जिस परमात्मा ने जंगलां नूं, घाड़ नूं, हर वनस्पति नूं हरिया भरिया कर दिता। उस परमात्मा दे रंग दे विच हर वनस्पति रंगी हुई है। मन तिन प्रभ संग मौलिया, समरथ पुरख अपार। उस वाहिगुरु दी अज सुझी आ गई है, वो सारे पूरे करण दे समर्थ है। मेरी की ताकत उत्थे चल सकती है, मैं ते कुछ भी नहीं कर सकता। वो परमात्मा है सारा कुछ करण दे समर्थ है। मैं ते एक पल दे विच ये मेरा शरीर है जिहड़ा मिट्टी बन सकता है, मेरे च कोई ताकत नहीं है। वो बेअंत है,
ऐसे मालिक के दीदार हो जावन, किते ऐसे वाहिगुरू के दर्शन हो जावन, मैनू किते हर मिलने नो मन लोचदा। पहले तो पता ही कोई नहीं सी कि रब है, पहले तो समझ ही कोई नहीं सी कि परमात्मा की कुदरत की है, वाहिगुरू की कैसी सृष्टि है, कैसे उन्हें जीवा वास्ते वनस्पति पैदा की है, कितने कितने अमोलक पदार्थ ने जीवा वास्ते पैदा किए ने, किवें फलां दे विच वाहिगुरू रस रखदा पिया है, उहदी कैसी शक्ति वरत रही है। अज समझ आ गई उस परमात्मा को मिलने वास्ते हर मिलने नो मन लोचदा। पर अगला वचन की है, कर्म मिलावण हार। जे ऐसे मालिक को मिलना कोई चाहता ना, वो कर्म दे राह ही मिल सकता है। जिहदा कर्म अच्छा है, जिहड़ा कर्म वधिया करता है, काम जिहदे चंगे ने, मन वृत्ति जिहदी अच्छी है, वही उस परमात्मा तक पहुंच कर सकता है। कर्मी आपो अपनी के नेड़े के दूर। जिहदे कर्म अच्छे ने ते जिहड़ा रब नूं मिलना चाहता, वो कर्म दे राही ही मिल सकता है। जे कर्म नहीं चंगे ते भावें जिन्ना मर्जी नाम जपदा रहे, वेखण नूं ते वो साधु होवेगा, वेखण नूं ते वो संत होवेगा, पहरावा ते संतां वाला होवेगा, पर जे कर्म नहीं चंगा, मन नहीं चंगा, दिल दे विच खोट है, मन दे विच कपट है, ते सतगुरु जी कहंदे तू रब दी प्राप्ति नहीं कर सकदा, तू परमात्मा तक नहीं पहुंच सकदा। जे तेरे दिल दे विच खोट नहीं गई, तेरा मन भी है और तन भी एक विग है तू, ते परमात्मा दे नाल तेरी साझ बन सकती है। क्योंकि अज दे युग दे विच ज्यादा यही है, मन नहीं प्रीत मुखो गंढ लभ। मन दे विच प्रीति नहीं है, मन दे विच प्यार नहीं गई, पर मुख तो असीं एडे एडे वड्डे वचन बोल देते हैं, एनियां एनियां वड्डियां गल्लां करते हैं कि मेरे वर्गा कोई महात्मा नहींगा, मेरे वर्गा कोई दानी नहींगा, मेरे वर्गा कोई सेवादार नहींगा, पर मन दे विच प्रीति नहीं है। इस करके सतगुरु जी कहते जे कर्म अच्छा है ते तुसी परमात्मा दे नाल मिल सकते हो। जिन्नी सकीए प्रभ पाया हूं तिन कै सद बलिहार। धन गुरु अर्जन देव जी महाराज सच्चे पातशाह जी एवें तरला लैके कह रहे ने कि जिन्नी सकीए प्रभ पाया, उस जीव स्त्री ने, जिस सहेली ने उस वाहिगुरू नूं प्राप्त कर लिया ना, जिहदा मन कीता सी कि हर मिलने नो मन लोचदा, जिहदा मन कीता सी ओनू मिलण दी, ते अज कर्म अच्छा करके, अज मन वृत्तियां चित एकाग्र करके उस वाहिगुरू दे नाल साझ पैदा कर लई है। ते कहंदे जिन्नी सकीए प्रभ पाया हों दा मतलब सतगुरु जी कहते मैं तिन के साध बलिहार, तिना तो कहते बारे बारे जाना हाँ, उन्हां तो बलिहार बलिहार जाना हाँ, जिन्हां ने इस संसार दे विच उस परमात्मा की प्राप्ति कर ली है। देखो रब ने परमात्मा आप धन गुरु अर्जन देव जी महाराज सच्चे पातशाह नाम जपण वाले नूं परमात्मा की प्राप्ति करन वाले नूं बलिहार जा रहे ने, ते पर जेड़े दुनिया के रंग तमाशियां दे विच रते ने उन्हां बारे ते कोई गल नहीं कीती। सतगुरु जी उन्हां बारे कह रहे ने हौं तिन कै सत बलिहार, नानक हर जी मैं कर शब्द सवारण हर। सतगुरु जी कहते सतगुरु किरपा कर दिओ साडे जीवां ते भी यही अरदास करिया करिए सतगुरु जी के चरणों दे विच कि वाहिगुरू साडे ते किरपा कर दिओ, तरस कर दिओ, साडी झोली दे विच भी शब्द दी दात पा दिओ, असीं भी शब्द दे नाल जुड़ जाइए, सानू भी तेरी गल जिहड़ी है समझ आउण लग जावे, असीं भी तेरे चरणों दे विच मन चित एकाग्र करके बैठना सीख जाइए। सतगुरु जीओ किरपा कर दिओ, उससे शब्द नहीं साडा जिहड़ा जीवन है सवारना है, उसी शब्द दे राही जीवन नूं सवार दिओ, साडे ते भी किरपा करके साडी झोली विच भी शब्द दी दात पा दिओ। सावण तिना सुहागनी जिन राम नाम उर हार।
ਸੁਖ ਸੁਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਤੀਤ ਹੋਵੇਗਾ, ਸੁਹਾਵਣਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਹੱਸਦਿਆਂ ਖੇਡਦਿਆਂ ਬਤੀਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰੋ ਕਰਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚਿੱਤ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਸਾਉਣ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਸੁਖ ਸੁਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਤੀਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਜਪਣਾ, ਸਿਮਰਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਸਾਲ ਲੰਘ ਜਾਣੇ ਨੇ, ਸੰਗਰਾਂਦਾਂ ਦੀਆਂ ਸੰਗਰਾਂਦਾਂ ਲੰਘ ਜਾਣੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਵੇਂ ਹੀ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਰੋਂਦਿਆਂ ਕਰਲਾਉਂਦਿਆਂ ਬਤੀਤ ਕਰਨਾ ਨੇ। ਪਰ ਉਹ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਜੀ ਮਿਸਤਰੀਆਂ ਨੇ, ਧਨਤਾ ਦੇ ਜੋ ਵੱਡੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਪ੍ਰਣ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਨਿਤ ਹੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਆਂ ਦੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕਰਕੇ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਹੈ, ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਭੇਦ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੱਡੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਜੀਵ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕਰਕੇ ਜੋ ਅੱਜ ਸਾਵਣ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਪ੍ਰਾਰੰਭ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਤੇ ਰੋਗਾਂ ਦੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਬਖਸ਼ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਸੁੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਮਹੀਨਾ ਬਤੀਤ ਕਰਵਾਵਣ। ਸੋ ਆਪ ਸਰਬੱਤ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਿੰਦਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀਆਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਦਾਰੇ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਲਾਹਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਜੀ। ਸੋ ਪਾਵਨ ਬਚਨਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਬੇਅੰਤ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਆਪ ਸਰਬੱਤ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਬਖਸ਼ ਲੈਣਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬਖਸ਼ ਲੈਣ।